visible and audible. So should I begin? Yes, you can. Okay. Firstly, pleasant good morning to one and all present here. My name is Sonali Ansar and I just want to thank Deepak sir for giving me such a opportunity to moderate today's session. And let's to talk about. I mean, ma'am has been such a great personality, and I got the opportunity to introduce her. So before introducing, I just want to quote some as Louis May Alcott said, some books are so familiar that reading them is like being home again. So we are just hopeful to Natya Shastra is just like home. So looking forward to learn too many insights from ma'am today's talk. So here I am going to introduce ma'am. Dagni Kapoor ma'am is an erudite research scholar who has visited several places across India to work on various research projects, reconceptualizing eco-criticism, theorizing in the classical framework of Sangam poems and Kalidas's works is the topic of a PhD from the Department of Modern Indian Languages and Literary Studies at the University of Delhi. Currently, ma'am is a postdoctoral fellow at Indian Council of Historical Research and Jawaharlal Nehru University. In addition, she is working at Indira Gandhi National Center for the Arts, Ministry of Culture as a research associate. She has presented papers at several reputed universities and institutes like IIAS, IIT, University of Delhi, Jawaharlal Nehru University, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, and other universities and colleges. She has more than 15 publications to her credit and has delivered talks in 14 national and international conferences and seminars. So, ma'am, welcome you on behalf of Passive Liberal Groups, and we are looking forward to learn so many insights from you. So, ma'am, over to you. Thank you. That was a very generous introduction, dear Sonali, and I'm very thankful to you. I am absolutely grateful today to join you all. Many thanks to Dr. Deepak and the team of Passive Liberals who have given me this opportunity. And my topic for today is going to be about Natya Shastra and what it is all about and how it could be analyzed. So basically, I will not take much time, so I'll simply start. So foremost, Natya Shastram, as we may say it in Sanskrit, it is ascribed to Maharshi Bharat Muni, and it is a treatise on ancient Indian dramaturgy and histrionics. So since it is an ancient treatise, so on dramaturgy. So what dramaturgy is, we can say dramaturgy, as far as it is concerned, it is a noun which is an art of writing and producing plays. And histrionics is an act of writing or a stage performance. So basically it is a verb. So there are a lot of classical terms and manifestations which have been talked about in Natya Shastram. So if I go ahead, that it is a unique work of Indian culture and literature, and this voluminous work, which I would also say that it has 36 main components which have been talked about in detail. And if I say that Natya Shastram, if we see that if it's read in English, it is composed in 2 or 3 volumes, but and according to that, it has been divided into 36 components. So this voluminous work, which deals with a lot of possible subjects in art, culture, and dramaturgy, as I said, it is connected with the stagecraft, which includes the construction of plays of different kinds. And I can also say that it was written around in the 5th century BC. And this text shows that we as Indians in Bharatvarsh, we
had reached this high level of perfection in presenting as well as constructing dramatic works. How we can put into literature कि ड्रामा की जैसे स्टेज पे कोई ड्रामा है उसको कैसे हमें व्यक्त करना है, कैसे हमें अपने सेंसेस को अवेकन करके उसको अवेक भी कैसे करना है सेंसेस को, उसमें भी बताया गया है नाट्य शास्त्र में, जिस पर मैं अभी आऊंगी. And in spite of this occasional preoccupation with man's destiny in the other world, which was the common topic of spiritual connection, they as in the classical Indian writers, they paid special attention to valuable respects, and such texts definitely presented a glimpse of the activities of the ancient Indian writers in their works, and they also talked about the earthly aspects of life, of their lives. And we may also say that in the field of dramaturgy and histrionics, which had begun before Panini, who composed his grammar sometime about 600 BC. So this work of Natya Shastra, since पाणिनि ने 600 BC के अराउंड ये जो है अपना ग्रामर के बारे में, संस्कृत पोएटिक्स के बारे में, ग्रामर के बारे में बात की थी, लेकिन नाट्य शास्त्र का जो काम है वो भरत मुनि ने उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके कहीं ना कहीं 5th century BC में उसको लिखना आरंभ किया था. So the original text of Natya Shastra was as if we say today that it was composed around 2 millenniums ago, certainly. So if I come to those 36 components, first of all, I would like to say this, that if I talk about in detail about these 36 components, it will take a lot of time. So I will focus on the main areas, which are basically the main sections of Natya Shastra, but I will certainly also at least name those 36 components which are an important part of this treatise. So number 1 is origin of drama in Natya Shastra. शुरुआत कहाँ से होती है, आरंभ कहाँ से होता है कि ड्रामा का origin कैसे हुआ. Then secondly we come, और इसका संस्कृत word जो है उसे हम कहते हैं नाट्योत्पत्ति ही, origin of drama. Then second we come to the Sanskrit word is mandapavidhanam, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं description of the playhouse. Thirdly हम आते हैं रंग दैवत पूजा विधानम, पूजा to the gods of the stage, invocation कैसे करना है, gods को कैसे invite करना है, वो third part में आता है. चौथा है तांडव लक्षणम, which is description of the class dance. Fourth is पूर्व रंग विधानम, preliminaries of a play, कि play का कैसे क्या उसके previous component, उसके शुरुआती क्या components हैं, वो है preliminaries of a play. Sixth part is रसाध्यायः, which is the sentiments. और ये sentiments का जो हम sentiments की जो हम बात करते हैं, यहीं पे हम रस की भी बात करते हैं. जो रस ध्वनि का कंपोनेंट आता है, आनंद वर्धन बात करते हैं, और उसको स्पिरिचुअल कनेक्शन में लाते लाते अभिनव गुप्त उसमें जो है अपना योगदान करते हैं अराउंड 8th to 9th century. That is the thing that I will come later. Seventh is भाव व्यंजक, which is emotional and other states. Eighth is gestures of minor limbs, which is उत्तमांगाभिनयः. Then we come to इसमें माइनर लिम्स जो है, एक बॉडी पार्ट के माइनर लिम्स का क्या रोल है हम जब एक ड्रामा को परफॉर्म करते हैं, ये दिस इज द 7th पार्ट. देन 8th इज उत्तमांगाभिनयः. देन 9th इज हस्ताभिनयः, जिसमें मेजर लिम्स की बात होती है. देन वी हैव जेस्चर्स ऑफ other limbs. I'll quickly come on to the names because this will take a lot of time. Then we have chari movements, mandal movements, different guides, zones and local usages, verbal representation and prosody, metrical patterns, diction of a play, rules on the use of languages, modes of address and intonation, 10 kinds of play. Then we come to the next 16 parts, which is limbs of segments, styles to how to perform a play, costumes and makeup, harmonious representation,
then we have dealings with courtesans, then we have varied representation, success in dramatic production, then we have on the instrumental music, on stringed instruments, hollow instruments, time measure, dhruv songs, covered instruments, types of character, distribution of roles, and finally, the descent of drama on the earth. So these are the 36 components which are majorly being talked about in Natya Shastra. So coming quickly, as I mentioned, that this was the work which was written more than 2 millenniums ago, and I have talked about the 36 components as well. So foremost, now it is very important that we do realize that this text is not that easy to understand, because first of all it was written for only the elite class. जैसे कि हम जानते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो आम जन तक नहीं पहुंचाई जाती है, तो भरत मुनि ने ये अपने शिष्यों के लिए, अपने जो उस टाइम बहुत एलीट क्लास ऑफ सिटीजन्स होते थे, राजा होते थे और उनके मंत्री होते थे, उन सब के लिए ये लिखा गया था. So apart from this, so this work has a peculiar textual tradition which developed obscurities, which was copied and recopied for persons who were later cut off from the original tradition. तो इसमें हमारा क्या है कि अगर हम अभिनव गुप्त जी की बात करें, he was one of the last great names in our classical Indian tradition who actually did an excellent commentary on नाट्य शास्त्र. तो यदि हम देखें तो इसमें 3 नाम जो हैं हम बेसिकली याद कर सकते हैं, जो कि एक तो भरत मुनि जी हैं और आनंदवर्धन है, फिर अभिनव गुप्त है. तो इन तीनों पर फोकस करके हम संस्कृत पोएटिक्स है या जो नाट्य शास्त्र है, इस पे हम अध्ययन कर सकते हैं. अब इसमें हम अगर देखें तो एंशिएंट इंडियन थ्योरी ऑफ ड्रामा क्या है, अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर आऊं तो उसमें अगर हम देखें तो नाट्य का अर्थ क्या है, जिसको हम ड्रामा में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, या हम ये कह सकते हैं दैट द वर्ड नाट्य हैज often been translated as drama, and the plays of ancient India have some points of similarity with those of the Greeks. अब ये एक अलग जो है, एक अलग स्टेज पे अगर हम जाएं, एक अलग पाथ हम अगर पकड़ लें, तो उस टाइम Greek drama or plays भी we know that they have had an excellent, have had a profound tradition of dramaturgy in their own ways, जिसमें अगर हम देखें तो एरिस्टोटल के पोएटिक्स का काम सबसे पहले हमारे माइंड में आता है. तो but that is another comparative analysis which we can pursue, that how Bharat Muni's Natya Shastra and Aristotle's poetics can have varied forms of similarities and differences. So anyway, this on closer examination one may say that the technique of the production which has been described in Natya Shastra, उसके जो अभी भी हमें स्पेसिमेन दिखते हैं या जो हम नाट्य शास्त्र की थ्योरीज को जो हम आज भी फॉलो करते हैं, उसको हम बहुत ही वेरिड फॉर्म्स में देखते हैं. उसमें अपने अपने मॉडर्न क्लासिकल इंडियन ड्रामेटर्जिस्ट ने अपने अपने इनपुट्स दिए हैं, क्योंकि उस समय का जो हम नाट्य समझते हैं, उस समय का जो हम ड्रामा समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसा हम कह सकते हैं कि उसमें हम ये कॉन्टेम्पररी इश्यूज, जैसे कि हम कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे संतोष पटेल सर के लेक्चर में कि भिखारी ठाकुर जी ने कैसे स्त्री विमर्श या दलित विमर्श पर काम किया. उस समय में ऐसा नहीं था. उस समय में फोकस ये होता था कि कैसे हम किसी भी हम समझ सकते हैं कि the content has to be absolutely related to our Indian gods and the epics which have been written, and we have to take lessons from it. And epics, I mean certainly Ramayana and Mahabharata. तो उस समय में I would talk about this very important fact that any subject, any discussion on the subject was liable to create a wrong impression. अगर हम इस subject से deviate हो जाया करते थे उस समय, तो उसे हम बिल्कुल ही गलत मानते थे कि हम भगवान के अलावा किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे.
तो ये जो है सबसे पहला जो उनका भरत मुनि जी का ये था कि हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज, उनके ज़माने में ये था कि हमें सिर्फ भगवान की तरफ अपनी आस्था रखनी है, तो कैसे हम उन्हीं की ही आस्था को ध्यान में रखते हुए कैसे एक ड्रामा को लोगों के प्रति एज इन वो भी एलीट क्लास, उनमें हमें कैसे उनका मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है. So I'll give you an instance here. There was a critique in the year 1890 who is Sylvain Levi. तो उन्होंने क्या नोटिस किया था कि इंडियन नाट्य, जो भारत का जो नाट्य है, वो कैसे ग्रीक ड्रामा से डिफरेंट है, and from which the westerners derived their early conception of the art. तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है. सो बेसिकली what Sylvain Levi said that it was Bharat Muni's Natya Shastra that was the base of dramaturgy. कि अगर हमें ड्रामा के बारे में, हिस्ट्रियोनिक्स के बारे में बात करनी है, तो हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को ही रेफर करें, क्योंकि एरिस्टोटल का टेक्स्ट भी बहुत ही आप लगा लीजिए, उसका भी अब डिबेटेबल है कि कब लिखा गया था. तो एरिस्टोटल का एरा भी हम मान लेते हैं कि 300-200 BC या उससे भी पहले हद से हद तक 400 BC तक हम मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम नहीं मानते. तो दिस वाज Sylvain's interpretation. So another thing is that इसका जो एटिमोलॉजी है नाट्य का, वो कहीं पे भी कोई फैंसी वे में नहीं है. It was they were very concerned about the aesthetics, the grammar, the representation of drama. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी हमने व्यक्त कर दिया, ऐसा नहीं होता है. So another thing is that terror and pity may be raised by decoration, the mere spectacle, but they may also arise from the circumstances of the action itself, which is far preferable and shows a superior poet. Yet again, the superiority has to be there. But if I come to this, but in case of ancient Indian dramas, the decoration का क्या meaning है यहाँ पे? The costumes and makeup. यहाँ पे decoration का जो था बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि भरत मुनि ने उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है decoration पर, और उसी से ही aesthetics जो है हम derive कर सकते हैं. So equally with 5 other elements such as gestures and postures, जिसको हम अंगिक कहते हैं, words जिसको हम वाचिक कहते हैं, the representation of sattva, it gives the natya its characteristic form. तो 3 चीजें हैं. Number 1, gestures of postures, यानी कि अंगिक या अंगिका, अगर हम उसका यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन देखें. Secondly, it's words, वाचिक या वाचिका. तीसरा हो जाता है कि representation of sattva. सत्व है, सात्विक है. अगेन फिर यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग कैसे अपने अंदर जो एक इमोशन है, एक भाव है, कैसे ला सकते हैं. ये तीनों जो हैं नाट्य के कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स हैं जो भरत मुनि ने बताए हैं. अब अगर हम 4 एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा की बात करें, इसमें क्या है कि टू अंडरस्टैंड this very technique of dramatic production, one must have knowledge of the styles as in vritti of dramatic production described in the Natya Shastra. अब ये 4 क्या है, 4 स्टाइल्स क्या है जो ड्रामेटिक प्रोडक्शन में हम मान सकते हैं. पहला हो जाता है वर्बल, यानी कि भारती. दूसरा हो जाता है ग्रैंड, यानी कि सवती. तीसरा हो जाता है एनर्जेटिक, अराभती. एंड चौथा हो जाता है ग्रेसफुल, कैशिकी. तो ये 4 जो हम स्टाइल्स देख सकते हैं ड्रामेटिक प्रोडक्शन में, ये नाट्य शास्त्र में डिस्क्राइब किए गए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा. सो द थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए प्रिपोंडरेटिंग यूज ऑफ स्पीच and in which male characters are to be employed is said to be in the verbal style. तो अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम भारतीय यानी कि वर्बल एस्पेक्ट की बात करें, तो उसमें हमेशा हम फोकस, इसमें नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है कि मेल कैरेक्टर पे ही फोकस रखा जाएगा, उसमें कोई फीमेल कैरेक्टर पे हम एम्फोसिस नहीं रखेंगे.
So this is applicable mainly in the evocation, for the evocation of the pathetic and the marvelous sentiments. बहुत ही tragedy, tragic component है, tragic element है, या एक pathetic का जो patheticism का जो concept है, उसमें हम male character को रखेंगे. Another thing is that the presentation. अब ये हम दूसरे aspect की बात करते हैं. Number 1 तो क्या था कि कुछ भी वर्बल है तो मेल कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा. दूसरा है द ग्रैंड, दैट इज सवती. उसमें क्या हो जाता है सेकंड एस्पेक्ट में, द प्रेजेंटेशन व्हिच डिपेंड्स फॉर इट्स इफेक्ट ऑन वेरियस जेस्चर्स एंड स्पीचेस, डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल एज एक्ट्स शोइंग द राइज ऑफ स्पिरिट is considered to be in the grand style. Now this is applicable to the heroic, marvelous and furious sentiments. तो अब अगर हम ग्रैंड की बात करें तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, heroic, marvelous, furious sentiments. Okay, so then अगर हम इसमें आगे देखें तो अब स्टाइल which includes the presentation of a bold person speaking many words, बहुत ज्यादा अगर वर्ड्स किसी को कहने हैं, डिसेप्शन की प्रैक्टिस है, फॉल्सहुड है, ब्रैगिंग है, फॉलिंग डाउन है, जंपिंग क्रॉसओवर है, ऑल दीज कॉन्जुगेशन, एक्ट्स ऑफ कॉन्जुगेशन, मैजिक ब्रिंग अस टू द थर्ड एस्पेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एनर्जेटिक एस्पेक्ट. एंड ये किस पे, अब किस सेंटिमेंट में अप्लाई होता है, टेरिबल, ओडियस एंड फ्यूरियस सेंटिमेंट्स. तो इसमें इतना ऑर्डर है इन 4 एस्पेक्ट्स में कि भरत मुनि ने ये भी बताया है कि कौन कौन से सेंटिमेंट्स उसमें आते हैं. अब फोर्थ एस्पेक्ट आ जाता है ग्रेसफुल, जिसे हम कैशिकी कहते हैं. अब इसमें क्या है कि द प्रेजेंटेशन विच इज स्पेशली इंटरेस्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ चार्मिंग कॉस्ट्यूम्स worn mostly by female characters. अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर हमें बहुत ज्यादा, अब इस चीज को कोई ये ना समझे कि यहाँ पे मेल या फीमेल में डिफरेंस हो रहा है, पहली चीज, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि फीमेल का जो फीमेल कैरेक्टर जो है वो सीरियस नहीं हो सकती है. ऐसा तो हम आज मानते हैं कि इतने फेमिनिस्ट नैरेटिव्स अब डेवलप हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे ये फेमिनिज्म जैसी कोई चीज नहीं थी. सीधी साफ सी बात थी, अगर कुछ ट्रेजेडी है, सीरियस है, तो वो मेल बात करेंगे, और अगर कुछ ज्यादा जिसमें फीमेल में क्या हो सकता है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा चार्म व्यक्त करना है, बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं हम कि हैप्पीनेस का भी कंपोनेंट कहीं ना कहीं अगर आ जाए तो उसके लिए हम फीमेल कैरेक्टर को लेंगे. एंड ऑब्वियसली उसमें डांसिंग सिंगिंग इन्वॉल्व होगा, तो तब भी फीमेल कैरेक्टर का उसमें हम फीमेल कैरेक्टर को हम वह एक्ट प्रेजेंट करने को हम एक फीमेल कैरेक्टर चूज करेंगे. और इसमें फिर क्या सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ लव, एंजॉयमेंट, which is said to constitute the graceful style. और सेंटिमेंट्स क्या आ जाते हैं, erotic and comic. अब देखिए, अब जहाँ पे फीमेल आ जाती है तो वहाँ पे erotic और comic aspect जो है भरत मुनि उसके बारे में बात करते हैं. तो ये 4 aspects हैं ड्रामा के, जो कि डिटेल में जो भरत मुनि है नाट्य शास्त्र में बात करते हैं. अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है थ्योरी ऑफ इमिटेशन. थ्योरी ऑफ इमिटेशन मैं ग्रीक एस्पेक्ट में बात नहीं करूंगी, वो और ज्यादा डिलिनिएशन हो जाएगा. तो अब क्या हो जाता है नाट्य शास्त्र में कि एक जनरल आइडिया नाट्य का जो है हम मानते हैं, उसमें देयर आर वेरियस टर्म्स टू डिनोट इट. So one may inquire what ancient Indian theorists exactly meant by the term natya, or what they regarded as being the essence of the dramatic art as opposed to the arts of poetry, fiction or painting. अब और भी forms of art हैं, तो उसमें नाट्य में क्या क्या मतलब नाट्य का क्या significance है, वो अलग aspect आ जाता है. अब उसमें अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना है, तो उसमें नाट्य शास्त्र जो है हमें एक पैसेज बताता है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि नाट्य की डेफिनेशन क्या है. उससे हमें पता चल जाता है कि पोएट्री, फिक्शन और पेंटिंग से हम नाट्य को कैसे डिफर कर सकते हैं. एंड व्हाट दैट लाइन इज, आई विल स्टेट इट इन इंग्लिश, व्हिच इज अ मिमिक्री ऑफ द एक्सप्लॉइट्स ऑफ गॉड्स, द असुर्स, kings,
as well as of householders in this world is called drama. तो ड्रामा क्या है? गॉड्स की एक्सप्लॉयटेशन है, असुर की एक्सप्लॉयटेशन है, राजाओं की एक्सप्लॉयटेशन है, या जो वर्ल्ड में अभी इसमें वर्ल्ड में हाउस होल्डर का यहाँ पे क्या मीनिंग आ जाता है? यहाँ पे भी गॉड्स का ही वर्णन है, हाउस होल्डर से यहाँ हमारा आमजन से नहीं है। तो ये बेसिक चीज है, इसको हम ड्रामा कहते हैं कि भगवान ने कैसे रहना, भगवान ने कैसे इस संसार को डेवलप किया। आई नीड नॉट डेलिनेट ऑल दिस, सो दिस इज बेसिकली द मिमिक्री ऑफ द लिविंग वेज ऑफ गॉड्स, असुर किंग्स एंड द हाउस होल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब उसमें भी जो बेसिकली भगवान जिस प्रकार से यहाँ संसार में उनका प्रवास रहा, उन्होंने क्या आगे कैसे अपना संदेश दिया, उसी चीज को एज इट इज बताने के लिए, लेसन्स देने के लिए जो हम मेथड एम्प्लॉय करते हैं उसको नाट्य कहा गया है। नाट्य शास्त्र में ये बताया गया है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें ड्रामेटिक कन्वेंशन पे आ जाते हैं, तो अब इंडियन थ्योरिस्ट जो है, एंशिएंट इंडियन थ्योरिस्ट है, उनका अटेंशन जो जाता है वो जाता है कि ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उसमें हमें कैसे एज इट इज यही मिमिक्री, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गॉड्स की कैसे व्यक्त करनी है, रियलिज्म कैसे लाना है, उसके लिए जगह कौन सी ढूंढनी है। किसी भी जगह पे आप भगवान की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हो, नंबर वन। एब्सेंस इन नंबर टू इज the, as I said, place of realism, which is also the absence in connection with the production of a play, is to be seen clearly from their very sensible division of the technical practice into realistic, lok dharmi and conventional. तो अब देखिए इसमें प्लेस का जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंस उसमें दी गई है। तो उपरोक्त चारों का अंग्रेजी में नाम क्या है? कोई अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं थोड़ा बाद में लूंगी। अच्छा, तो अब इसमें देखिए ड्रामेटिक कन्वेंशंस में इंडियन थ्योरिस्ट जो आगे इसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली यही फोकस करते हैं कि आप कहीं भी किसी भी ड्रामा को जो गॉड ओरिएंटेड हो उसको हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। अब इस कन्वेंशन को नाट्य शास्त्र डिस्क्राइब कैसे करता है? आई विल स्टेट इट इन इंग्लिश दैट इफ अ प्ले कंटेन्स एक्ट्स modifying traditional stories, supernatural powers, and disregards the practice about the languages, and requires acting with playful use of angharas, and possesses characteristics of dance, requires conventional enunciations, and is dependent on itself. अब इसमें क्या फर्दर आ जाता है कि किसी भी ट्रेडिशनल स्टोरी को, सुपरनेचुरल पावर को, या कोई भी प्रैक्टिस है जिसमें हमें गॉडली एक्ट डिफाइन करना है, भगवान की भाषा कैसी होनी चाहिए, किसी भी कोई वॉर है, कोई एक्ट ऑफ रेनंसिएशन है, जो भी है उसमें डांस के थ्रू या वेज ऑफ स्पीकिंग के थ्रू कैसे हमें उस एक्ट को व्यक्त करना है, ये नाट्य शास्त्र का अलग एस्पेक्ट आ जाता है। अगर हम देखें तो इसमें फिर हम फर्दर आ जाते हैं कि भरत मुनि फिर टाइम एंड प्लेस की बात करते हैं ड्रामा में। अब ग्रीक ट्रेजेडियंस का थोड़ा अलग इसमें मानना हो जाता है अगर हम इंडियन प्लेराइट्स के कंपैरिजन में देखें। अब एंशिएंट इंडियन प्लेराइट्स ने क्या किया था? दे नेवर मेड एनी अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट द फिक्शनल एक्शन टू अ लेंथ ऑफ टाइम roughly similar to that taken up by the production of a drama on the stage. टाइम का यहाँ पे कुछ लिमिट ऐसा नहीं माना जाता था। अगर हम देखें किसी भी प्लॉट में जो डेवलपिंग प्लॉट्स थे, they had not usually any restriction on the length of time, provided that individual acts included incidents that could take place in a course of a single day. अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब सिंगल डे भी अगर हम भगवान के इंडियन गॉड्स के अगर हिसाब से हम टाइम देखें, तो आज का जो सिंगल डे है वो उस टाइम का सिंगल डे मेंट अ लॉट ऑफ इयर्स। अब उसमें क्या हो जाता है? नथिंग कुड बी पुट इन देयर टू इंटरप्ट द रूटीन ड्यूटीज सच एज सेइंग प्रेयर्स, ऑफ टेकिंग मील्स, lapse of time between two acts which might be a month of a year but never more than a year,
was to be indicated by an introductory scene praveshak preceding the second one. अगर हम invocation में आ जाते हैं, invocation के बाद जो introductory scene आ जाता है, उसमें अगर हम एक दिन की बात करें तो उसमें एक दिन का भी क्या वर्णन हो जाता था कि वो मैक्सिमम एक साल का एक महीना, उसको हम जो फर्स्ट सीन होता था उसको हम एक महीने से ज्यादा समय को लेकर व्यक्त नहीं कर सकते थे. एक महीने का रिस्ट्रिक्शन होता था. कोई वैसे लेंथ की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कही गई है, पर एक महीना जो था वो लिमिटेड माना जाता था. अब अगर हम आते हैं और प्लेस का तो जैसा कि है देवर क्वाइट उसमें बहुत ज्यादा वो समझते थे कि प्लेस जो है बहुत ज्यादा होली होनी चाहिए. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी कंडक्टेड amidst the elite class. और यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन में अगर हम आ जाएं, अब जैसे कि हमने अभी जैसा कि समझा जाता है कि टाइम और प्लेस की वैसे तो कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि कहाँ पे कितने समय में कौन सी जगह पे प्ले करना है. लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते थे ड्रामा के समय जिसमें प्लेराइट जो है, एक ड्रामाटर्जिस्ट है, उसको केयरफुल रहना होना होता था कि यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन कैसे प्रोड्यूस किया जाए. अब इस पर्पस के लिए नाट्य शास्त्र जो है कुछ डिवाइसेस का फॉर्मुलेशन करता था, which means the seed beach of the play as well as its vital drop binds was always to relate to every act of the play, and the hero was sometimes to appear in every act or to be mentioned there. So this was a basic aspect. इसमें क्या है कि एक प्ले का जो बेसिक थीम होता था, जिसको यहाँ पे सीड या बीच के बारे में कहा गया है, उसका जो एक वाइटल एस्पेक्ट है, जो वाइटल थीम है, वो हर एक्ट में आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो थीम है वो फर्स्ट एक्ट में आ गया तो सेकंड एक्ट में नहीं होगा. ये पहली उसकी मेजर जो थी, इट वाज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो दूसरा ये क्या हो जाता था कि एन एक्ट वाज नॉट टू प्रेजेंट टू मेनी इंसिडेंट्स. ज्यादा इंसिडेंट्स किसी भी एक्ट में नहीं होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, पर थीम जो है हर एक्ट में होनी चाहिए. अब अगर हम देखें कि इसमें भी थोड़ा क्रिटिसिज्म क्या आ जाता है कि उसी समय से क्लासिकल टाइम्स में, और अगर हम कहीं ना कहीं जाए तो एंशिएंट टाइम्स में भी आ जाएं, तो उसमें माना जाता था कि एक जो प्ले हो रहा है या ड्रामा की परफॉर्मेंस हो रही है वो एक बस स्पेक्टिकल है, ऐसा माना जाता था. कुछ क्रिटिक्स ऐसा मानते थे कि ये एक प्रेक्ष है, ये एक स्पेक्टिकल है, बस एक विजुअलाइजेशन है. इसलिए जो लोग उसको अटेंड करते थे उनको स्पेक्टेटर्स कहा जाता था, ऑब्जर्वर्स कहा जाता था. कभी उनको ऑडियंस क्या अगर हम दर्जा दे भी, तो ऑडियंस के एस्पेक्ट में ये होता था कि उसको बस एक स्पेक्टेटर या ऑब्जर्वर ही माना जाए. ऐसा क्रिटिक्स कहते थे कि इससे ज्यादा ऑडियंस की एलिवेशन हमने नहीं करनी है. एंड देयर वाज ऑलवेज एन एस्पेक्ट ऑफ स्पीच एलिमेंट. स्पीच एलिमेंट है जो कि सामने से आ रहा है, उसमें ऑडियंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. उसको देखिए, उसको बस थोड़ा समझिए, दैट्स इट. यू आर नॉट सपोज्ड टू कंट्रीब्यूट इन इट. ऐसा नाट्यशास्त्र में कहा गया है. अब इसमें क्या नाट्यशास्त्र में ऐसा कहा गया है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म भी इनवाइट करता है. नाउ दिस डिस्पोजेस द क्वेश्चन ऑफ जजिंग द वैल्यू ऑफ अ ड्रामा एक्सेप्ट इन कनेक्शन विद इट्स प्रोडक्शन ऑन द स्टेज. ऑब्वियसली अब इसमें जैसे कि अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी की बात करते हैं तो उसमें कथारसिस आ जाता है, जो कि अगर हम संस्कृत पोएटिक्स में देखें तो उसको हम रस का कॉन्सेप्ट हम मानते हैं. तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये आ जाता है कि यदि हम एज अ स्पेक्टेटर सिर्फ देख रहे हैं तो हम फिर उसमें रस का जो भाव हम सामने लाना चाह रहे हैं, तो ये तो भरत मुनि का क्रिटिसिज्म हो गया. तो उस टाइम में क्रिटिसिज्म बस ये मांग रहा था या ये चाह रहा था कि हमें अपने रस को अवेकन करने के लिए एक ड्रामा देखने की जरूरत नहीं है. तो ये एक सिंपल बेसिक जो है क्रिटिसिज्म उस टाइम ड्रामा का हुआ करता था. लेकिन अब इसमें अगर हम नाट्यशास्त्र में अगर हम ड्रामा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम देखें कि I will state this in English. This, that is the natya, that is the drama, it teaches duty, number one, to those who have no sense of duty, number one. Number two, love to those who are eager for its fulfillment, and it chastises those who are ill-bred or unruly, promotes self-restraint in those who are disciplined, gives courage to cowards, energy to heroic persons, it enlightens men of poor intellect, gives wisdom to the learned. So it's basically, in the end, the awakening of your mind. This gives diversion to kings, firmness of mind to persons afflicted with sorrow, and hints of acquiring wealth to those who are for earning it, and it brings composure to persons agitated in mind. Hence, अगर हम इतना कुछ उस ड्रामा की परफॉर्मेंस से डिराइव कर रहे हैं, तो इट बेसिकली वी कैन नॉट एक्ट एज अ स्पेक्टेटर. तो क्रिटिसिज्म यहीं पे ही ध्वस्त हो जाता है कि हम एज अ स्पेक्टेटर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जब हम नाट्य शास्त्र के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो एक प्ले हम देखते हैं, तो उसमें वी आर नॉट जस्ट एन ऑडियंस, वी आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्ले, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट, वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स अवेकन्ड. अब अगर हम बहुत इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स का है. दिस इज द 8th एस्पेक्ट which is we call रस. अब इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रसा हो जाता है जो कि गलत है, तो इसको हम रस ध्वनि है, रसा ध्वनि जो है वो वेस्टर्नर्स, यूरोपियंस, अमेरिकन्स बोलते हैं, इवन इंडियंस टॉक अबाउट इट. सो रस में क्या हो जाता है? द स्पेक्टेटर्स ऑफ अ सुपीरियर ऑर्डर did not, however, stop at seriously, and as was the wont of the Indians of early times, it made an attempt to find out the philosophy of it. अब देखिए, रस, इसमें जो नाट्य शास्त्रम में जो रस की बात की जाती है वो 8 स्टेजेस की बात होती है, और 8 स्टेजेस में हम 3 लेवल्स ऑफ मीनिंग समझते हैं. नंबर 1 लिटरल मीनिंग, नंबर 2 उसका मेटाफोरिकल मीनिंग, तीसरा जाता है सजेस्टिव मीनिंग. सजेस्टिव मीनिंग जो है एक 3rd लेयर मानी जाती है. अगर हम आज के भी किसी भी लैंग्वेज के लिटरेरी वर्क को एनालाइज करें तो उसमें हमें सजेस्टिव मीनिंग समझना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ लिटरेरी वर्क एज वेल. लेकिन नाट्य शास्त्रम हमें सिखाता है 8 स्टेजेस में कि कैसे हम सजेस्टिव मीनिंग तक पहुंच सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये अवश्य ही नहीं हो जाता है कि सजेस्टिव मीनिंग है ही. लेकिन क्योंकि उस समय कोई भी ड्रामा का वर्क इस प्रकार से लिखा जाता था कि कॉन्शियस एक कंसेंशस लेवल पे अपने 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 भावों को कैसे, 8 भावों को कैसे अवेकन करना है, तो उसके लिए 3 लेवल्स ऑफ मीनिंग बहुत जरूरी होते थे. एक ड्रामा को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके 3 मीनिंग्स हमें समझने बहुत जरूरी हो जाते थे. नाउ it was not enough for them that the spectators enjoyed without a successful dramatic performance. They were also curious to find out the process through which it provided enjoyment to them, and discovered what may be called the psychological basis of this enjoyment. अब इसको रस को जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एंजॉयमेंट कहा गया है. क्यों कहा गया है? क्योंकि यहीं से हम अपने इमोशंस या भावों को सामने ले आते हैं, हमारे अंदर से वो भाव सामने आते हैं, जिसको हम cathartic release भी कहते हैं. Now this was because without a knowledge of psychology, neither the playwrights could build up characters in a play, nor could the actors and the actresses represent these on the stage for evoking sentiments in the spectators. Certainly इसके बिना जो है कोई भी ड्रामा का प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता था. अब देखिए, men have as many as 41 psychological states. भाव जिसे हम कहते हैं, फीलिंग जिसे हम कहते हैं, फॉर इंस्टेंस लव, mirth, sorrow, anger, energy, terror, disgust, astonishment, discouragement, weakness जो कि physical weakness है, apprehension है, envy है, जलन है, intoxication, weariness, indolence, depression, anxiety, etc. So अब जो पहले 8 हैं, पहले 8 यानी कि लव, mirth, sorrow, anger, energy, terror, disgust and astonishment,
यहाँ पे इनका क्या हो जाता है, दे हैव अ ड्यूरेबल इफेक्ट ऑन एनी ह्यूमन पर्सनालिटी, या स्थायी भाव हम उसे कहते हैं। और यही 8 जो है बेस बनाते हैं सेंटिमेंट्स का, यानी कि रस का। while the remaining 33 have only a complementary यानी कि व्याभिचारण कैजुअल इफेक्ट ऑन इट। तो वो 33 जो है वो कैजुअल इमोशंस में आ जाते हैं, लेकिन जो 8 भाव है, मैं फिर से उनको बोलूंगी इंग्लिश में, लव, mirth, sorrow, anger, energy, terror, disgust and astonishment। तो ये जो है 8 माने जाते हैं 8 रस। और एक 9वां रस क्या हो जाता है, शांत रस। शांत रस के बारे में आज भी चर्चा होती है और शांत रस के ऊपर बहुत सारे कार्य भी आज भी बन रहे हैं, लेकिन शांत रस के ऊपर इतना फोकस जो है यहाँ पे इतना नहीं किया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स। अब थ्योरी ऑफ रस पे अगर हम ज्यादा फोकस करें तो सबसे पहली चीज क्या है, we must remember the distinction between the two groups of psychological states. Those called durable affect the human personality so profoundly that the person concerned forgets for the time being all other things in or around him. अब ये psychological states का भी यहाँ पे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि उसमें लव या सोरो है, या मान लीजिए मर्थ है, एंगर है। तो ये जो थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स है, दिस इज ट्रू इन केस ऑफ अदर साइकोलॉजिकल स्टेट्स एज वेल। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये जो 8 रस है ये उन 33 रसों पे भारी पड़ जाते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है नाट्य शास्त्र में कि उन 33 रसों की बात कीजिए, लेकिन 33 रसों का जो एग्जिस्टेंस है वो उन 8 रसों के बिना पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम आए तो इस थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स को एप्रिशिएट करने के लिए we need to understand that it is necessary to remember that the psychological states durable as well as complementary, ये durable जो psychological states हैं ये 8 रस हैं, complementary जो states हैं वो है 33 states। these two groups relate primarily to characters in a play, generally a hero or a heroine। अब आगे क्या हो जाता है इसमें, the process through which his or her durable psychological states grow should receive our attention most importantly। तो ये 8 रसों का जो ग्रुप है ड्यूरेबल स्टेट्स जो है साइकोलॉजिकल स्टेट्स, इन्हीं पे फोकस रखा जाता था कि एक हीरो और हीरोइन को कैसे उन 8 रसों को फोकस रख के एक ड्रामा की प्रेजेंटेशन की जाए। अब देखिए इसमें आगे क्या हो जाता है, to illustrate this let us take the case of the pathetic sentiment। अब pathetic sentiment as अभी मैंने कहा कि उसमें मेल वॉइस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी उस सेंटिमेंट को दिखाने के लिए। it is the durable psychological state of sorrow that can evoke it। अब मेल, अभी इसमें मैंने जब 4 एस्पेक्ट्स की बात की थी तो मेल वॉइस क्या है, उसमें pathetic sentiment लाने के लिए ट्रेजेडी का होना बहुत ही जरूरी है। तो अब वो स्टेट जो है वो इवोक कैसे की जाए, it grows from an affliction under a curse, separation from dear ones, loss of wealth, someone's death, captivity, similar other misfortune। तो ये जो aspects हैं ये एक tragedy को, एक pathetic sentiment को evoke करने के लिए यहाँ पे इन aspects पे highlight किया जाता था। Now all such things are called विभाव्स, और literally हम इनको भाव कहते हैं, determinants कहते हैं। determinants जो इस determinants के अंदर ये एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, बट दिस इज नॉट इनफ फॉर आवर एप्रिसिएशन ऑफ द ड्यूरेबल साइकोलॉजिकल स्टेट्स। नाउ अब जो स्पेक्टेटर्स हैं टू विटनेस दिस रिप्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज, अब स्पेक्टेटर्स को भी अब कथार्टिक इफेक्ट अगर हमें व्यक्त करवाना है, नाउ दिस मीन्स दैट द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज विभाव्स और डिटर्मिनेंट्स अपॉन द हीरो और द हीरोइन शुड बी मेड मैनिफेस्ट थ्रू एक्टिंग। सर्टेनली अब अगर हमें ड्रामा में है तो उसमें तो एक्टिंग है ही, लेकिन उस एक्टिंग में एक पैथेटिक का एस्पेक्ट लाना और कथार्टिक एस्पेक्ट को इवोक करना ऑडियंस में, ये इक्वेशन डेवलप करना वाज नॉट दैट इजी। तो ये उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो एक इक्वेशन है फ्रॉम हीरो और हीरोइन टू द ऑडियंस, अब इसको हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, एक्टिंग के थ्रू मैनिफेस्ट करेंगे। एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द विभाव्स और डिटर्मिनेंट्स, the characters concerned would shed tears
अब ये देखिए, अब यहाँ पे जो है कैरेक्टर को एक्चुअल में रोना है, उसको इस तरह से अपने अंदर वो भाव लाना है, उसको आंसू बहाने हैं, उसको लेमेंटेशन दिखानी है, चेंज देयर कलर और शो ड्रूपिंग लिम्स, इस तरह से हमें एक्टिंग करनी है कि हमारे जो लिम्स हैं, हाथ है, पैर है, हमारी आंखें हैं, वो इस तरह से इमोशन व्यक्त कर रही हैं कि ऑडियंस को लगे कि हमारे सामने एक्चुअल में हो रहा है, क्योंकि हम गॉड्स का एक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज नॉट जस्ट एनी नॉर्मल प्ले, दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड, मैनिफेस्टेशन ऑफ अ गॉड. And these being the effect of the durable psychological states are called anubhavs, sequel to bhavs or consequence. Consequence. अब देखिए, इसमें ये इफेक्ट लाने के लिए जो भाव जो स्टेट्स हैं, इस पथेटिक एक्ट को, ट्रेजेडी इवोक करने के लिए जो ड्यूरेबल साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, इन्हीं को हम अनुभाव कहते हैं और इन्हें हम कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं. अब अगर हम आगे आते हैं तो इन स्पाइट ऑफ दिस लर्नड थ्योरी ऑफ, अभी तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर एग्जांपल्स ऑफ इवोकिंग ट्रेजेडी. अब अगर हम हर 8 रस पे आए तो वो बहुत लंबा डेलिनेशन होगा. अब इस लर्नड थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स की बात करें जो नाट्य शास्त्र में बताई गई है. The dramatic criticism never became in ancient India a preserve of the scholastic critics. अब इसमें क्रिटिसिज्म हम ये समझ सकते हैं कि जो बात कह दी है भरत मुनि ने वो हम मान लेते हैं, हमें उसको ज्यादा क्रिटिक नहीं करना है, बिकॉज हर जगह पे क्रिटिसिज्म हम नहीं लाना चाहते हैं और लाना भी नहीं चाहिए. कोई भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, हर बार क्रिटिसिज्म उसमें नहीं लाना चाहिए, और ये पॉलिसी, ये जो एक्ट है, ये हमें आज भी फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. The specialists in dramatic production never forgot that this was basically a social amusement and as such depended a great deal for its success on the average spectators. अगर spectators में रस का भाव आ जाता है, 8 रस में से या 33 रसों में से कोई भी evocation हो रही है, तो वो play successful माना जाता है. उसमें इतना criticism involve करने की जरूरत नहीं है, ये नाट्य शास्त्रम कहता है. अब अगर हम आगे थोड़ा सा चलें तो इसमें हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं कि अब देखिए, अब टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है एंशिएंट इंडियन ड्रामा में, उसमें हमें एक चीज ध्यान रखने की क्या है कि इट अवॉइडेड स्टार्क रियलिज्म एंड गेव अटमोस्ट स्कोप टू इमेजिनेशन एंड फैंसी. अब देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी डिबेट ये आ जाती है, अगर हम गॉड्स के एक्ट को व्यक्त करते हैं तो उसमें इमेजिनेशन और फैंसी क्यों आ रही है. यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि गॉड्स जो है वो इमेजिनेशन में है, वो एक फैंसी आइडिया है और उसको हम ब्रैग कर रहे हैं. बट देयर इज अ डिफरेंट अनमिस्टेकेबल एविडेंस हियर ऑफ दिस, दैट द टोटल एब्सेंस ऑफ एनी पेंटेड सीनरी फ्रॉम द स्टेज. अब यहाँ पे रियलिज्म, जैसे मैंने कहा था कि रियलिज्म की बात आ जाती है. ट्रेजेडी ही एक ऐसा रस माना जाता है जिसमें रियलिज्म की ऑथेंटिसिटी दिखाई जा सकती है. कॉमेडी में भी है वो चीज, लेकिन ट्रेजेडी को ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है. तो अगर हमें एकदम ही स्टार्क रियलिज्म दिखाना है और इमेजिनेशन को अवॉइड करना है, फैंसी को अवॉइड करना है, फेकनेस को अवॉइड करना है, तो हमें एक ऐसी प्लेस में वो एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिखाना है जहाँ पे लगे कि सच में यहाँ किसी गॉडली या डिवाइन फिगर का प्रेजेंस हुआ था और यहीं पे वो एक्ट ऑफ रेनंसिएशन हुआ था. तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल सीनरी नहीं चाहिए, और इसीलिए रस का एवोकेशन आर्टिफिशियल सीनरी से नहीं आ सकता है. तो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं सभा रख दी है, वहाँ पे एक्ट ऑफ ड्रामा, यहाँ पे ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो नहीं, वहाँ पे रस का भाव नहीं आएगा. वो चीज यहाँ पे नहीं है. नाट्य शास्त्र कहता है उसके लिए कुछ भी आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन सेज ऑफ ड्रामेटर्जी. आगे अगर हम देखें तो इसमें जो एक बेसिक एलिमेंट जो और आ जाता है कि प्ले हाउस या जो थिएटर है उसका भी जो है अब वेरियस टाइप्स ऑफ प्ले हाउस बताए गए हैं, जिसमें जो डिटेल में ऑब्वियसली नाट्य शास्त्र में मेंशन है. अब देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि द कंपैरेटिव स्मॉलनेस ऑफ द एंशिएंट इंडियन थिएटर was a necessary consequence of the peculiar technique of dramatic production. For in a large playhouse, the spectators could not all have heard the delicate points
on which depended in no small measure success of a performance. एक प्ले हाउस में स्पेक्टेटर को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं. The inordinate large Athenian theatre, यहाँ पे ग्रीक ट्रेजेडी की अगर हम बात करें, was not much handicapped in this respect. अब ग्रीक ड्रामा में क्या था, इसमें भी उसमें तो थोड़ा सा हम ये समझते थे एक एक सभा में जो है हम उसमें लोगों को इकट्ठा करके उसमें रिप्रेजेंटेशन करें. अब इसमें प्ले हाउस या थिएटर की बात हो रही है, तो प्ले हाउस ग्रीक ड्रामाटर्जी का एस्पेक्ट है, और थिएट्रिकल एस्पेक्ट में जिसमें कि हम डांस, हम जिसमें रस की एवोकेशन है, वो इंडियन थिएट्रिकल ड्रामाटर्जी में हिस्ट्रियोनिक्स में आ जाती है. हिस्ट्रियोनिक्स में बेसिक एलिमेंट यही होता है कि आपका किसी भी भाव को बहुत ज्यादा एक्सैजरेटेड फॉर्म में हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं. उतना एक्सैजरेशन हम पोएटिक्स में, ग्रीक पोएटिक्स में या ग्रीक ट्रेजेडी में नहीं देखते हैं, ग्रीक प्लेज में नहीं देखते हैं. तो ये एक बेसिक जो है आइडिया है नाट्य शास्त्र में, जो भरत मुनि अपने ऋषियों को, अपने स्टूडेंट्स को या ऋषि जो उनसे लेसन्स लेते थे, उनको बताया गया है. अब देखिए, अब अगर हम इसके टेक्स्ट की बात करते हैं, तो अब पहली चीज तो ये हमें देखनी चाहिए कि नाट्य शास्त्र जो एक कंपोज्ड फॉर्म में है, संस्कृत में या इंग्लिश में तो चलिए बहुत बात की बात है, तो उसमें द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र वो सर्टेनली नॉट द फर्स्ट राइटर ऑन द सब्जेक्ट. ये एक डिबेटेबल चीज है. जैसे कालिदास के भी कुछ प्लेस हम मानते हैं, उनको जो कहे गए हैं कि कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, पर वो ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे किसी प्ले राइट ने लिखे हैं. लेकिन हम ऐसा भी मानते हैं कि नाट्य शास्त्र ठीक है भरत मुनि ने लिखा था, लेकिन देयर आर रीजंस टू बिलीव कि जो ड्रामा और एलाइड आर्ट्स जो कि ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, they for some time had a number of treatises written on them when the नाट्य शास्त्र was written. नाट्य शास्त्र जब लिखा गया था उससे पहले भी इस पर चर्चाएं हुई थी, लेकिन भरत मुनि हम कह सकते हैं that he instilled life to this characteristic of dramaturgy, जिसको हम नाट्य शास्त्र कहते हैं. उसमें एक composed form को एक life जो दी है, वो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की फॉर्म में दी है. अब इसमें क्या है कि अब अगर हम देखें तो for evidence that at least among the so-called 100 sons of Bharat were the predecessors of the author of this old work. अब इतने hundreds and 200s इतने 100 फॉर्म्स में जो इसकी ड्रामाटर्जी पे टिप्पणियां हुई हैं, तो वो भरत मुनि से पहले भी लिखी गई थी, लेकिन शायद उसकी कंपोज्ड फॉर्म भरत मुनि जी ने ही दी थी. So he naturally depended on their writing. So we can also say that he took inspiration from them, he composed them, and he appears from the nature of the text that he absorbed in it some materials without much change. अब change भी अगर कोई आता है तो इतना significant change just for the sake of courtesy, there was not any significant change in Natya Shastra. Now, these were the basic main elements of नाट्य शास्त्र. अब देखिए, अब जो चैप्टर 1 आता है ओरिजिन ऑफ ड्रामा, उसमें क्या हो रहा है, मैं आपको शुरू के कुछ एस्पेक्ट्स पर मैं टिप्पणी करूंगी. देखिए, अब संस्कृत में क्या लिखा है, मैं उसको उस पर नोटिस करूंगी. ओरिजिन ऑफ ड्रामा जो कि सैल्यूटेशन है, क्या हो रहा है सैल्यूटेशन में, संस्कृत में मैं बात करूंगी. प्रणमय शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहरितम. अब इसका इंग्लिश में क्या है कि विद अबाउट टू पितामह यहाँ पे ब्रह्म, टू विद अबाउट टू पितामह टू महेश्वर यानी कि शिव, I shall relate the canons of drama as these were uttered by Brahma. अब सेज सैल्यूटेशन में ये जो है, ये पहली लाइन है कि मैं बो करता हूँ ब्रह्म के सामने, शिव के सामने, कि जो कैनन्स ऑफ ड्रामा है, जो ब्रह्म ने एज इट इज जिनके ऊपर कहा गया है, मुझे इसकी आज्ञा दीजिए, मुझे इसके लिए इंस्पिरेशन दीजिए कि मैं उस डिवाइन आर्ट ऑफ ड्रामाटर्जी पे बात कर सकूं. ये सैल्यूटेशन में कहा गया है. अब अगर हम सेजेस जो उस टाइम सेंट्स थे,
उसका मैं इंग्लिश में बताती हूँ कि क्या है, क्योंकि संस्कृत की जो 4 लाइंस हैं वो थोड़ी सी डिटेल्ड है. सो आई विल से व्हाट सेजेस आर क्वेश्चनिंग टू भरत मुनि. क्या कहते हैं? वंस इन द डेज ऑफ योर high souled sages such as Atreya and others who had subdued their senses approached the pious Bharat Muni, the master of dramatic art, during an intermission of studies. अपने स्टडी से ब्रेक लेके वो भरत मुनि के पास अपने बहुत सारे सवाल लेके आते हैं, प्रश्न लेके आते हैं. भरत उस समय then just finished the muttering of मंत्र, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण वो समाप्त करते हैं. And he was surrounded by his sons and other high souled sages such as Atreya and other rishis. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. The high souled sages who controlled their senses respectfully said to him. अब उनकी क्या आशा है, उनकी क्या उनसे उनके अंदर ऐसी ज्ञान को लेके उत्सुकता है कि वो भरत को कहते हैं, I'll say this in English, O Brahman, how did originate the Natya Ved similar to the Ved? जो 4 वेद हैं उन्हीं की ही कंसिडरेशन में नाट्य वेद कैसे ओरिजिनेट हुआ. Which you have properly composed. ये नाट्य वेद जो आपने लिखा है उसको कैसे आपने लिखा है, उसको कैसे ओरिजिनेट आपने किया है. And for whom is it meant? How many limbs does it possess? What is its extent? And how is it to be applied? ये 4 questions, 5 questions, बहुत important questions ये sages भरत मुनि से किए जाते हैं. अब इसके बारे में वो कहते हैं आगे कि please speak to us in detail about it all. You tell us in detail what is the origination, how you compose these in similarity to Ved. अब देखिए, अब भरत क्या कहते हैं इसमें, ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रही हूँ. ये ओरिजिनेशन ड्रामा का ओरिजिन ऑफ ड्रामा में कहा गया है. भरत कहते हैं, मैं संस्कृत में लाइन बोलूंगी, ये एक ही लाइन है इसलिए. भरत क्या कहते हैं, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा मुनिनाम भरतो मुनिः प्रत्युवाच ततो वाक्यम नट्य वेद कथाम प्रति. अब देखिए, हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ द सेजेस भरत स्पोक thus in reply about the नाट्य वेद. नाट्य वेद के बारे में वो कहते हैं, भवद्भिः शुचि विभूर्त्वा तथा वहीत मानसैः श्रूयताम नाट्य वेदस्य संभवौ ब्रह्म निर्मितः. नेक्स्ट, पूर्वं कृतयुगे विप्राः वृत्ते स्वायंभुवेन्तरे त्रेता युगे था संप्राप्ते मनोर्वैवस्तवस्य च. अब ये शुरू की जो है 6 लाइंस में से मैंने आपको 3 लाइंस कही हैं. इसमें भरत जी का क्या उत्तर है ये देखिए. इंग्लिश में मैं कहूंगी, गेट योर सेल्फ क्लेंस्ड. सबसे पहले तो आप अपने सोल को, यहाँ क्लेंस का मतलब फिजिकल क्लीनिंग नहीं है. बी अटेंटिव and hear about the origin of the Natya Ved devised by Brahma. O Brahmins, in the days of yore were the golden age, Kreta Yug, passed with the reign of Swayambhuv Manu, and the silver age Treta Yug commenced with the career of Vaivasvatu Manu, and people became addicted to sensual pleasures. तो अभी ये यहाँ पे वो डिटेल में बता रहे हैं कि जो एक डिवाइन ऑर्डर की जो प्रेजेंस थी, डिवाइन ऑर्डर नॉट द ट्रिनिटी ऑफ कोर्स, द इंडियन डिवाइन ऑर्डर दैट एग्जिस्टेड, वो क्रेता युग से फिर त्रेता युग आया. सेंसुअल प्लेजर्स जो है लोगों में, सेंसुअल प्लेजर्स यहाँ जो है थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में हम नहीं कहेंगे कहा गया है, पर एक इन्फ्लुएंस, एक एफेक्टेशन मानी गई है कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है क्रेता युग से त्रेता युग में यदि हम आते हैं. फिर देखिए इसमें फिर भरत आगे क्या कहते हैं, they became the common people became affected with jealousy, anger, and thus found their happiness mixed with sorrow. अब जम्बू द्वीप जो था, जम्बू द्वीप which was protected by the Lokpals, guardians of the worlds, was full of gods, danavs, gandharvs, yaksh, rakshas, great urgas, nagas. The gods with the great Indra as their head approached Brahma and spoke to him. We want an object of diversion. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सभी जो
सभी जो भगवान उस समय होते थे इंद्र के साथ ब्रह्म ब्रह्म की ओर जाते हैं, ब्रह्म जी के ब्रह्म के पास जाते हैं, भगवान ब्रह्म के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक डाइवर्जन की ऑब्जेक्ट चाहिए विच मस्ट बी ऑडिबल एज वेल एज विजिबल, जिसे हम देख सकें, जिसे हम परसेप्ट कर सकें और समझ सकें. As the existing of Vedas are not to be listened by those born as Shudras. अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वेद का ज्ञान जो है वो कॉमन पीपल तक, कॉमन जो आम जन है उन तक हम नहीं क्योंकि ले जा सकते हैं. वेद जो है सबको मालूम है कि उस समय एलीट क्लास तक लिमिटेड थे, लेकिन हमें इंद्र कहते हैं जो बाकी भगवानों समेत ब्रह्म जी के पास जाते हैं, कहते हैं हमें हमें एक ऐसी डाइवर्जन का ऑब्जेक्ट दीजिए जो कि हम सब तक पहुंचा सके, and we should be pleased to create another Ved which will belong equally to all the color groups. अब एक ऐसा देखिए, अब नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद माना जाता है, लेकिन हम वेद में डिस्टिंक्शन चार वेदों की करते हैं, लेकिन पांचवा वेद यहाँ पे कहा गया है, इंद्र कहते हैं, भगवान कहते हैं ब्रह्म को कि एक पांचवा वेद ऐसा बनाइए जो कि हम आम जनमानस तक पहुंचा सके. नाट्य शास्त्र, हालांकि नाट्य शास्त्र भी जब लिखा गया था तो उसका मेन पर्पस यही था कि वो एलीट क्लास में लिमिटेड रहेगा, लेकिन इंद्र का यहाँ पे ऐसा मानना था, बाकी भगवानों का ऐसा मानना था कि चूंकि वेद की इतनी इंपॉर्टेंस है तो हमें हमें पांचवा वेद दीजिए जो कि हम धीरे धीरे उसकी जो उत्पत्ति है, उसकी जो संभावना, उसकी जो एक मैनिफेस्टेशन है वो बाकी आम जन तक पहुंच सके. तो इसमें ब्रह्म क्या कहते हैं ये देखिए. अब इसमें ये संस्कृत की लाइन में कहूंगी, बहुत सुंदर पंक्ति है. एवं स्तविति तानुक्त्वा देवराजं विसृज्य च सस्मार चतुरौ वेदान योगमास्थाय तत्वविद. अब इसमें क्या हो रहा है? लेट इट बी सो. ब्रह्म कहते हैं ठीक है, मैं एक ऐसा पांचवा वेद मैं ऐसा आप लोगों को दूंगा. Said he in reply, and then having dismissed the king of gods, Indra he resorted to yoga and recalled the mind the four Ved. अब उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा वेद होगा जिसमें योग के बारे में बात होगी, या जिसमें एक ऐसा वेद होगा जिसमें नाट्य के बारे में बात होगी, विद द सेमी हिस्टोरिकल टेल्स, यानी कि इतिहास. अब कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम अपने भगवानों के बारे में बात करें तो वो हिस्ट्री नहीं है, जैसे रामायण महाभारत को हिस्ट्री नहीं, माइथोलॉजिकल टेल्स माना जाता है. लेकिन ब्रह्म ने क्या कहा था कि मैं इस पांचवें वेद में सेमी हिस्टोरिकल टेल्स का वर्णन जो है इसमें किया जाएगा, which will conduce to duty, dharma, wealth, earth as well as fame, will contain good counsel and collection of traditional maxims which will give guidance to people of the future, as well as in all their actions will be enriched by the teaching of all authoritative works, shastra, and will give a review of all arts and crafts. तो ये सब इसके अंदर वर्णन किया जाएगा. तो ये फिर नाट्य शास्त्र में ये बातें डिटेल में बताई गई हैं. ये ओरिजिन ऑफ ड्रामा की कुछ शुरू की पंक्तियां हैं जो मैंने आपको अभी बताई. अब थोड़ा सा जो एस्पेक्ट है, क्योंकि अब आई गेस थोड़ा टाइम की भी लिमिटेशन है और आपके प्रश्न भी होंगे, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कुछ ग्रीक ड्रामा ट्रेजेडी पे भी फोकस किया था, तो उस पे मैं थोड़े से कुछ वर्णन करूंगी कि अब देखिए, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी मानी जाती है जो मुझे एकदम से याद आई है कि नाट्य शास्त्र का, जैसे कि मैंने कहा कि एक संसार में जो हमें एक अपना कॉन्डक्ट रखना है, एक अच्छा जो कॉन्डक्ट रखना है, उसका इमिटेशन कैसे करना है वो नाट्य शास्त्र बताता है. अब इसमें देखिए, नाट्य शास्त्र इट हैज टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्ल्ड टू एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर, एज आई सेड. अब इसमें मैंने आपको जो बातें कही हैं वो विधि के बारे में कही हैं. विधि का क्या अर्थ हो जाता है कि विधि में एक एक्ट होना चाहिए,
It has the character of all sentiments, comprises of 13 aspects. It is to be acted by one or two characters, यानी कि हीरो हीरोइन पे फोकस होता था. It may include 3 kinds of dramatic, प्रकृति, high, middling and low. Secondly, model spectator, जिसके बारे में बात मैंने की है. Compendium, यानी कि rhetorical sentiments, रस, जैसे कि मैंने durable और यानी कि 8 रस, और compendium यानी कि consequential 33 रस के बारे में मैंने बात की. तीसरा आ जाता है भाव, again which was related to रस. व्याभिचारी भाव जिसमें कि it was to create the sentiments in a variety of ways. 33 रस का जो मैंने बताया वो व्याभिचारी भाव माने जाते थे. सात्विक भाव, obviously that originates in the mind. Sattva is produced when the mind is in perfect concentration or state of equipoise. विभाव has the sense of, विभाव पे यदि हम आते हैं, sense of cause or stimulant, instrument of intention, it determines words, gestures, psychophysical acts. अनुभव पे यदि हम आते हैं, it is dramatic experience that is consequence of physical reaction to acting through words and gestures. सिर्फ words और gestures पे एक dramatic experience develop करना, उसको हम अनुभव कहते हैं. रस के बारे में I had talked. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने 8 रसों के जो 8 रस में जो इमोशनल स्टेट्स माने जाते थे वो इरोटिक श्रृंगार से आता था, और वही इरोटिक श्रृंगार कॉमिक या हास्य में बदल जाया करता था. सेकेंडली, जो हीरोइक वीर का रस था वो मार्वलस अद्भुत रस में बन जाया करता था. फ्यूरियस रौद्र रस में, पैथेटिक करुण रस में डेवलप हो जाता था. चौथा, ओडियस यानी कि विभत्स का जो रस था वो टेरिबल भयानक रस में उसकी कन्वर्जन हो जाया करती थी. ये 8 रस की जो है एक सेकेंडरी रस. उन्हीं 8 रस में जो 4 रस हैं वो नेक्स्ट 4 रसों पे कैसे डेवलप हो जाते थे ये भी नाट्य शास्त्र में वर्णन है. अब देखिए, अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो 8 रस है उनके क्या कलर्स होते थे, उनकी क्या डीटीज होती थी, ये भी मैं शीघ्र इस पे बात करती हूँ. जो इरोटिक रस था नंबर 1, उसका कलर होता था लाइट ग्रीन और उसकी जो डीटी थी वो थी विष्णु. सेकेंडली, कॉमिक रस, कलर इज व्हाइट, डीटी इज प्रमोथुस. तीसरी है फ्यूरियस, कलर उसका रेड, डीटी इज रुद्र. पैथेटिक, ऐश कलर, यम. ओडियस रस, ब्लू कलर एंड शिव, मुहुकाल इज द डीटी ऑफ ओडियस रस. नेक्स्ट वी हैव टेरिबल रस, 6th रस, whose color जिसका कलर ब्लैक था, डीटी उसकी काल, काली, महाकाल, जो भी समझिए. रस 7th रस हीरोइक, कलर उसका लाइट ऑरेंज, डीटी उसके इंद्र. 8वां रस मार्वलस, कलर येलो एंड डीटी वाज ब्रह्म. So these components have been highlighted in detail. अब देखिए, अब शांत रस की बात अगर आ जाए तो अभिनव गुप्त ने जो शांति, पीस, शांत रस को 9th रस की उपाधि दी है. This is the point of debate over its status of ras in the tradition of Sanskrit scholarship in today's times in art and literature. अब इसमें थोड़ा सा जो मैंने आपको कहा कि पोइटिक्स, एरिस्टोटल की पोइटिक्स और नाट्य शास्त्र में जो थोड़ा सा क्या सिमिलैरिटी है वो हम देख लेते हैं जल्दी. अब इसमें क्या है कि एरिस्टोटल के जो ग्रीक ट्रेडिशन है उसमें एरिस्टोटल ने जो अपना बेस बनाया है वो ट्रेजेडी पे बनाया है. नाट्य शास्त्र में यदि ट्रेजेडी आती है तो वो पैथेटिक फॉर्म में आती है जिसको मेल डिस्क्राइब करते हैं. मेल हीरो, मेल एक्टर जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं. Now, according to Aristotle, comedy is a cheap art. In contrast, नाट्य शास्त्र is based on Indian theory of कर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कर्म का ऐसा कोई भी वर्णन ग्रीक ट्रेजेडी में नहीं है. नेक्स्ट, अब पोइटिक्स में क्या हो जाता है, द ग्रीक प्लेस डील विद सैक्रिफाइस ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन, एडल्ट्री, मर्डर, पार्टिसाइड. ऑन द अदर हैंड, पेट्रिसाइड सॉरी, नाट्य शास्त्र अबाउंड्स इन पैशन, रोमांस, exploits of god, goddesses, infatuations, sorrow, separation. अब दूसरा देखिए, भरत मुनि ऑब्वियसली रस की बात करते हैं, लेकिन एरिस्टोटल के पोएटिक्स में कहीं पे भी रस का एवोकेशन की बात नहीं है. He has given importance on the plot. Aristotle has classified plot into simple and complex. ये 2 aspects पे फोकस है. भरत कहते हैं 8 रस की बात करते हैं, जो कि मैं जिसका वर्णन मैं कर चुकी हूँ.
अब देखिए, अब इसमें जो है, अब ये तो डिटेल में हो जाएगा अगर मैं उसका कंपैरेटिव एनालिसिस लेके बैठ गई। तो अब इसमें मैं आनंद वर्धन को यहाँ पे कोट करूंगी, जिन्होंने ध्वनय लोक जो उनके द्वारा रचित है, उन्होंने क्या कहा है, इन द शोरलेस वर्ल्ड ऑफ पोएट्री द पोएट इज द यूनिक creator. Everything becomes transformed into the way he envisions it. If the poet is emotionally moved in his poems, then the whole world is infused with rus. But if he be without an interest in the scenes, then everything will become dry. ये इसका इंस्पिरेशन नाट्य शास्त्रम से आनंद वर्धन ने लेकर अपने ध्वनय लोक में इस बात को रचित किया है। अब देखिए, उसी के बाद अगर हम अभिनव गुप्त पर आए, जिन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर फोकस करके नाट्य शास्त्रम और अब आनंद वर्धन पर टिप्पणी की है। अब इसमें अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, जो कि भरत को क्रिएटर प्रजापति के साथ मानते हैं। क्या कहते हैं? आई विल स्टेट दिस इन इंग्लिश। दिस हैज बीन मेंशन्ड इन अभिनव भारती जो अभिनव गुप्त ने लिखी है। अब इसमें देखिए, द पोएट इज लाइक प्रजापति, from whose will this world arises. For the poet is endowed with a power to create wondrous and unheard of things. This power arises from the grace of parvak, highest speech. वक जो है धातु है, वचन जिससे आता है, संस्कृत में वक जो है उसका धातु है, which is just another name for poetic imagination. प्रतिभा, highest speech से ही जो है पोएटिक इमेजिनेशन एवोक होती है, जिसको हम प्रतिभा कहते हैं, which has its seat in the poet's own heart and which is eternally in creative motion. उदिता कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रजापति से कंपैरिजन किया है, ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसके लिए आपको अभिनव भारती और ध्वनय लोक यदि आप चाहें तो आप जरूर पढ़िए। अब देखिए आगे, तो अब मैं I'll just conclude. It's quite थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। अब लास्ट में बस मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगी कि to construct a beautiful story by the appropriate treatment of the determinants, consequence, transient emotions. रस भाव को यदि evoke करना है, सिंपल सी बात में, to effect a change in the story by creating a purely imaginary incident in place of the historical incident, in order to fulfill the requirements of the ras, to employ sandhis and sandhyang junctures, not just with a view to observing the formal requirements of a discipline, but for fulfilling the conditions necessary for the expression of ras. तो ये जो necessary conditions employ होनी चाहिए, या जो भी representation हमें करना है, वो certainly fanciful नहीं होना चाहिए. There are numerous historical episodes capable of expressing ras, but the poet cannot select anyone he likes. उसमें भी एक poet को बहुत ध्यान रखना है, एक dramaturgist को बहुत ध्यान रखना है. Lastly, I would say that the great poet selects only that kind of story, according to Natya Shastram, which provides an adequate scope for the treatment of the determinants consequence. Again, the poet has to be all the more cautious in the handling of imaginative material. A slight mistake is enough to expose his lack of learning. The plot ought to be imaginatively built in such a way that the ras would pervade the whole entire world. So this is basically a short, I won't say a short, but this is what I have understood in brief कि नाट्य शास्त्र में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये 36 कंपोनेंट्स पे यदि हम बात करें तो वो पूरा दिन लग सकता है, महीने लग सकते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र की जो रचना है उसको उस समय तो इम्प्लीमेंट जो है मैक्सिमम 10th 11th सेंचुरी तक, जब भारत में मेडिएवल था, जिसको हम 8 से 18वीं सेंचुरी तक मानते हैं, 700 से 1700 BC तक, वो 1000 सालों का जो पीरियड हम मेडिएवल पीरियड मानते हैं, तो मेडिएवल पीरियड की स्टार्टिंग में हद से हद तक मान लीजिए 1080 तक, तब तक नाट्य शास्त्र का इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत अच्छे से हुआ है। उसके बाद
एक जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो कि मृच्छकटिकम जो एक एक्ट, मृच्छकटिकम के एक्ट में हम जान सकते हैं या कालिदास में जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका ये एक क्रिटिसिज्म था भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को कि अब हमें ऐसे प्लेस नहीं लिखने हैं जहाँ पे सिर्फ गॉडली रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि भगवान पे प्रश्न किया जाना जो है, भगवान की एग्जिस्टेंस पर प्रश्न जो है शुरू हो चुका था। इसीलिए जो आगे मेडिएवल पीरियड के इंडियन ड्रामेटर्जिस्ट हैं या आप जो मॉडर्न आप ड्रामेटर्जिस्ट देख लीजिए, अब उनमें जितना कम भगवान के बारे में चर्चा हो उतना ही ज़्यादा जो है उसको मॉडर्न माना जाता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री माना जाता है। लेकिन भरत मुनि कहते हैं कि यदि आपको नाट्यशास्त्र के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन होनी चाहिए, सही बात है, लेकिन इमेजिनेशन को भी इस तरह से दिखाइए कि वो ऐसा लगे कि आप उससे रिलेट फील कर पा रहे हैं। आप इमेजिनेशन में भी जो एक कैरेक्टर है, हीरो है, हीरोइन है या उसके फेलो कैरेक्टर्स हैं, उसके साथ आप रिलेटेड फील कर सकें, उसकी इमेजिनेशन में जितने कम शब्दों में आप उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकें, उसको कैसे करना है वो नाट्यशास्त्र की बेसिक पॉलिसी है। सो आई वुड रियली सजेस्ट ऑल ऑफ यू to read these few texts which I'm going to recommend, which I will also write. Number one, obviously Natya Shastram by Bharat Muni, जिसकी आप कोई भी टेक्स्ट पढ़िए, कोशिश कीजिए या तो आप मोतीलाल बनारसी दास या आप चौकम्बा का एडिशन पढ़िए, वो ही सबसे मान्य माना जाता है इंग्लिश ट्रेडिशन में। संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़िए, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और यदि आप नाट्य शास्त्र की कमेंट्री पढ़ना चाहते हैं जो कि इंग्लिश में लिखी है, संस्कृत में ज़्यादा वर्णन नहीं है, तो आप कपिला वात्स्यायन जी की जो कमेंट्री है नाट्यशास्त्र पे वो पढ़िए। कपिला वात्स्यायन जी अब नहीं है, पर उनकी जो इंग्लिश कमेंट्री है वो बहुत अच्छी है। तीसरा जो टेक्स्ट है, ये सब टेक्स्ट मैं आपको लिख के दूंगी। एक टेक्स्ट है क्रिटिकल अप्रोच टू क्लासिकल इंडियन पोएटिक्स, जो कि डॉक्टर R.S. तिवारी जी द्वारा लिखी गई है। तो एंड ऑब्वियसली एरिस्टोटल का पोएटिक्स, अगर आप उसको और ज़्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो नाट्यशास्त्र के अगर आप 36 कंपोनेंट्स को यदि आप समझते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कितना लैक कर रहे हैं आजकल के ड्रामा को या किसी भी स्टेज प्ले को दिखाने के लिए हम कितना लैक करते हैं। वो हमें, अगर हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पढ़ें तो वो लैक हमें समझ में आता है। सो I will just stop here. I think I've taken enough time. So I would further ask Sonali. I guess Sonali was the moderator, and Dr. Deepak to kindly please. I will go forward with the questions. I think I did justice because there are a lot of things in Natya Shastra. जितना कहा जाए उतना कम है, जितना comparative analysis हम करें उतना कम है. So this I will now. We look forward to the questions. I'm really thankful to you all listening to me this far. Yes, Sonali, there would be some question in the comment box. Do check, and there will be one question from my side, but in the end, the last one will be mine. Yeah, firstly, thank you so much, ma'am, for such insightful and session. So participants, if you have any questions, observations, so the floor is open to you. You can ask, unmute yourself and ask, or either type in the chat box. There is one question in the chat box. Should I read it? Yes, you can read it. Sonali, it's okay. I have seen the questions. It's okay. You need not. I will see. मैत्रेय अरणय जी का प्रश्न है, भारती, अरभटी, कौशिकी, सात्वती, भगवू जी की में कौशिकी प्रयोग होता है। अच्छा, तो ये तो सवाल नहीं है। उपप्रयोग चारों का अंग्रेजी में नाम क्या है ये बताएं। अब देखिए, अब मैंने, हाँ जी, इनका मैं इंग्लिश में नाम बताती हूँ। जो है भारती है उसको हम वर्बल कहते हैं इंग्लिश में, जो अरभटी है उसको हम एनर्जेटिक कहते हैं, कैशिकी को हम कहते हैं ग्रेसफुल, और सात्वती को हम कहते हैं ग्रैंड। इनके बारे में मैंने बात की थी, चारों को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। सामाजिक कहा जाता है दर्शक को, जी बिल्कुल। कथ्य के 3 प्रकार, प्रख्यात, माइथो, उत्पाद्य, इमेजिनेटिव, मिश्र, मिक्सचर ऑफ मूथी एंड इमेजिनेशन, ठीक है।
अच्छा, सकलेन साकिब जी कहते हैं सच एज शेक्सपियर्स पोट्री सीन इन मैकबेथ वाज रिटन बाय अनदर राइटर पॉटर। अच्छा, ये आप किस विषय में कह रहे हैं सकलेन जी? ये मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ कि शेक्सपियर का वर्णन मैंने नहीं किया है। शुभादीप, इनका जो है वो हैक राइटिंग से है, लाइक कुछ राइटर ने किसी और का काम था लेकिन किसी और के नाम से, जैसे आपने कहा था कि जो भारत मुनि है उनके काम से पहले भी नाटक पे कुछ काम था, तो इसी जी। रेफरेंस में ये कोटेशन है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, देन इट मेक सेंस। मैत्रेय अरण्य जी, अच्छा इंग्लिश में मैं नाम मैं बता चुकी हूँ। हाउ कैन एन एक्टर रीच टू सात्विक अभिनय टू सेल्फ एंड टू मेक द ऑडियंस फील दिस इंस्टेड? अब ये देखिए, तो मैं पूरे जो मैंने अपना वक्तव्य दिया है कि सात्विक अभिनय, अब इसमें तो क्या हो जाता है कि अपने कंसाइंस को रेज करना, ये कहने की बात बहुत आसान है लेकिन उसको अवेक करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये टास्क जो है एक कैरेक्टर पे, हीरो या हीरोइन पे छोड़ दिया जाता है, इसीलिए वो 8 रस की बात की गई है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सामने आप बैठे हैं और आपके अंदर एकदम से रस की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हाउ का जो सवाल है, ये कैसे होता है, ये एक एक्सपीरियंस का भी इसमें फैक्टर आ जाता है कि जब कोई भी कैरेक्टर उस ड्रामा में उस एक पर्टिकुलर स्टेज पर अपने एक्ट में जो एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है किसी डिवाइन फिगर की। अब देखिए, जो भी हमारे एपिक्स लिखे गए हैं उसमें इतने लेसन्स दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति आज से कितने ही सालों बाद उन स्टोरीज उन एक्ट से रिलेशन फील कर सकता है। वो इसी तरह वो एपिक्स लिखे गए हैं। आप गीता पढ़ लीजिए या महाभारत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन देने का जो एक तथ्य सामने आता है, उसको किस प्रकार से देना है, वो सात्विक भाव कैसे लाना है, यही उन 8 रसों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे इवोक किए जाएं। तो ये जो आप सात्विक अभिनय, जो सेल्फ के साथ रिलेशन हमारा होता है, वो हम सेल्फ ओरिएंटेड जो रिलेशन है वो हम एक कैरेक्टर में कैसे देखें, ये उन 8 रसों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो यही जो कथार्टिक एक्सपीरियंस है, वो 33 रसों का जो आगे मैनिफेस्टेशन होता है, वो ठीक है, वो डिफरेंट एक्ट्स में आता है। एक जो प्ले प्रोग्रेस करता है उनकी भी कहीं ना कहीं वो उत्पत्ति होती है, लेकिन वो कैसे रिलेशन बनाना है वो 8 रसों पे डिपेंडेंट होता है। Jasmine Sultana says, ma'am, you mentioned that Bharat Muni elaborated that no artificial intelligence need. ठीक है, so does Natya Shastra defy Eliot's concept of objective correlative to some extent? नहीं, ये यहाँ पे ये कोई, अच्छा आपने जो लिखा है कि so does नाट्य शास्त्र defy Eliot's concept of objective correlative? अब देखिए, objective correlative का यहाँ पे कोई डिफाइंस नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाट्य शास्त्र की बेसिक थीम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिविटी पे उसका बेस नहीं है, वो सीधा सब्जेक्टिविटी पे बात होती है। तो एलियट का जो यहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, उसका ना नाट्य शास्त्र उसका डिफाइंस कर रहा है और ना ही एलियट का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, उसका भी जो है कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं खराब हो रहा है। तो ये बात मैंने इसलिए नहीं कही थी कि ऑब्जेक्टिविटी जो है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये बात भी आप इसको इस प्रकार ना लें। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन समझ रहे हैं तो वो उसका बहुत कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म से भी बहुत इन्फ्लुएंस है। तो मॉडर्निज्म का एस्पेक्ट हम क्लासिकल ट्रीटीज में हम उसकी जो है रिलेशन नहीं लेके जा सकते, सो देयर इज नो डिफाइंस एज सच। तो दिस इज व्हाट हाउ आई कैन understand. Yes, okay, great. So yeah, any other question? Oh yes, so I will be the last one, I think so. If anyone have they can ask or type their question, otherwise I will jump. So Ragini, as far as I understand from your long lecture on the Greek drama that you are mentioning,
What I find that Indian classical drama or Greek drama like Achilles, Euripides, Agathon, Thepsis, Kenneth Maclis, or in case of India, if we go by Bhasa, Marchkatikam, or that Karnabharam, if name is wrong, pardon me, and then we can also have Kalidasa's Megh, that Malvikagnimittram, Vikramausi, Abhijaan, Skuntalam, Mudra Rakshasa, and so on. So these play are nearly of the same age, 100, 200, or 500 years gap we can consider them. But if we look at the treaties or compare Bharat Muni's Natya Shastra or that uh, Horace Ars Poetica or Aristotle's Poetics. These are much smaller books as compared to them, but we are having heavily book, as you say, it would take 2 or 3 volumes in that. So my first question is related to its length. Why it is so much when we have? In case you say that you are unaware about the time of for that Aristotle's Poetics. But if we go that most of the academic world was unknown about this as we I think the in the modern time it was somewhere around 5080 1580 when the book was discovered first, and it was kept in the French university. That is why we rarely find unity of time, place, action, or concept of hero, tragedy, or comedy, whatever we call in the plays of Shakespeare, because world was unaware about it. But if we go by the Indian, I want to know the status of this text, uh, whether we have knowledge about नाट्य शास्त्र इन दोज ईयर, बिकॉज टिल 5080 1580 तक तो अरिस्टोटल की पोइटिक्स थी ही नहीं, तो इसका क्या स्टेटस है? एंड थर्ड, लाइक द ड्रामास दैट वी आर फॉलोइंग, वी मोस्ट ऑफ द टाइम आर फॉलोइंग द tradition of Aristotle poetics, tragedy, comedy, imitation, character, hero, spectacle, song, uh, whatever. But if we come to Indian side, then several things are missing, like you also mentioned several theory of sentiment, durable psychological state, pathetic sentiment, we can also compare with them. But if we look at the text, which text are more read, if we can find that William Shakespeare is most studied author of world, but when we compare him with Kalidasa, although comparison is wrong, but we find that Kalidasa sold more books than William Shakespeare. Then how to look the art system, especially the drama system of India and the world? So these are my 3 points. Thank you. Okay, Deepak, I will briefly answer these questions. That first of all, agar length ki baat, if we talk about the length of the Greek plays and the Greek treatises as compared to Indian treatises, see, Indian theoreticians and aestheticians were focused on aesthetics, and they were focused on डिटेल में अगर किसी के बारे में बात करनी है तो इंडियन थ्योरेटिशियंस का, जैसे कि नाट्य शास्त्र में मैंने कहा कि 36 कंपोनेंट्स की ज्यादा फोकस रखी जाती है. सो देयर वाज दिस फोकस ऑफ इवन द स्लाइटेस्ट एंड माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल, उसमें फोकस रखा जाता था. आई एम नॉट सेइंग दैट इवन दैट ग्रीक्स अवॉइडेड इट, बट ग्रीक्स का क्या अप्रोच जो मैंने समझी है, उनकी फोकस जो है सिर्फ एक एस्पेक्ट पे होती थी, जो कि थी ट्रेजेडी. अब अगर हम ट्रेजेडी पे फोकस रख रहे हैं, लेकिन ऐसा तो इंडियन प्लेस में नहीं होता था. इंडियन प्लेस में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है. तो अगर इतने सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो एक छोटा एक्ट ऑफ प्ले नहीं हो सकता है, एक छोटा प्ले नहीं हो सकता है, छोटा कोई लिटरेरी वर्क नहीं हो सकता है. लेकिन अब अगर मैंने सारे ग्रीक प्लेस तो नहीं पढ़े हैं, तो उसमें मेरी नॉलेज लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि मैंने ग्रीक में जो अगर ग्रीक पोएटिक्स में अगर मैंने अध्ययन किया है तो वो एरिस्टोटल पे फोकस किया है. बाकी जो लिमिटेड स्टडी है उसके बेसिस पे आई कैन से दैट अगर एक कंपोनेंट पे फोकस है, या ठीक है कहीं ना कहीं आई थिंक एज फार एज आई नो एरिस्टोफेन्स का कॉमेडी पे थोड़ा सा फोकस था. आई एम नॉट श्योर, आई मे बी रॉन्ग. सो certainly if there is focus on one particular characteristic as compared to a lot of like say 41 characteristics, तो certainly the length और उसका फिर
अब इतने सारे एक्ट्स में उन्हीं 41 कंपोनेंट्स को लेके आना, तो आई नीड नॉट इलैबोरेट ऑन दिस दैट द डिटेल एस्पेक्ट was there because, और उस डिटेल को हम अगर आनंदवर्धन अभिनव गुप्त पर लेके आए तो उसमें स्पिरिचुअल एडिशन भी हो रही थी, स्पिरिचुअल कंपोनेंट भी एडिशनली आ रहा था, जो कि मुझे लगता है ग्रीक प्लेस में इतनी स्पिरिचुअल एडिशन नहीं हो रही थी। और आपने जो बात कही कि I'm sorry I didn't get your third question which was related to the time period, कि हमने 1500 AD में इसको एक्सप्लोर किया। अब देखिए ये तो एक सिंपल सा जो मैंने इसका कॉम्पोजिशन समझा है कि because the works were limited to only the kings, to the kings के या उनकी सभाओं पे लिमिटेड ये चीजें होती थी, तो आम जन को नहीं कुछ ज्ञान था कि संस्कृत में क्या है, लैटिन में क्या है या ग्रीक में क्या काम हो रहा है, they were not aware of it। तो अगर अब देखिए, अब जैसे कि अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बोलूं, जो मिडिएवल हिस्टोरिकल वर्क्स हैं इंडिया के, जो कि मोडी स्क्रिप्ट में है या इवन प्राकृत में है या आप किसी और लिपि में देख लीजिए, वो आज भी हमारे सामने नहीं आए हैं। तो अगर हम ऐसी जो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन है उसका जो बेस है वो हमारे उन्हीं डायलेक्ट्स में, उन्हीं जो लिपि में या कुछ फोकलोरिस्ट ट्रेडिशंस में जो एक इंडियन हिस्ट्री जो अभी भी कहीं ना कहीं लिमिटेड हमारे सामने नहीं आई है, वो अभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई है। तो अगर नाट्यशास्त्र हमारे पास इतने सालों बाद, अगर एक मिलेनियम के बाद हमारे सामने नाट्यशास्त्र आ रहा है, तो इसीलिए क्योंकि जब संस्कृत का कहीं ना कहीं जो उसकी जो रीच है जो धीरे धीरे आनी शुरू हुई आम जन तक, तो कहीं ना कहीं फिर ये समझ में आया कि अब नाट्यशास्त्र का जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या उसको और ज्यादा उसके ऊपर जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं, वो धीरे धीरे अभिनव गुप्त या आनंदवर्धन ने भी उसकी जो चर्चा की है, उस पे जो कमेंट्रीज लिखी हैं अभिनव भारती या अध्वान आलोक में, वो धीरे धीरे आम जन तक पहुंचनी शुरू हो गई थी। अब उसके बाद अब जैसे कि आई थिंक इवन ब्रिटिशर्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन इंडियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिंगिंग दी संस्कृत वर्जन्स टू द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। आई थिंक ब्रिटिशर्स का ये कंट्रीब्यूशन तो रहा है कि अगर वो नहीं होते तो कई सारे संस्कृत वर्क्स हमारे सामने नहीं आते। मैक्सवेल का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम देखें अभी भी आज के दिन में भी आई डोंट थिंक सो वी हैव इनफ नॉलेज ऑफ आवर इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। सो व्हाई आई टॉक्ड अबाउट द मिडिएवल हिस्टोरिकल वर्क्स फॉर नाउ, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी लैक है कि वो अभी भी उसको सामने नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उसके जिन भाषाओं में वो लिखी गई है वो आज भी वो हमारे सामने उनको अंडरस्टैंड करने के स्कॉलर्स हमारे पास नहीं है। तो इतना जो रिच ट्रेडिशन है, इतनी जो क्लासिकल एरा की, मैं एंशिएंट की बात नहीं कर रही हूँ, क्लासिकल एरा बाद का आ जाता है, तो क्लासिकल एरा की जो हिस्ट्री हमारे पास वो आज भी नहीं है। तो लिटरेरी ट्रेडिशंस, लिटरेरी वर्क्स जो लिखे गए हैं, नाट्यशास्त्र का हमारे सामने लेट आना या पाणिनि का हमारे सामने, पाणिनि की जो ग्रामर है उसके जो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि उसके 12 वॉल्यूम्स मैंने पढ़ने की कोशिश की, वो आज भी मुझे अभी भी समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इतनी रिच क्लासिकल संस्कृत जो है, या तमिल का जो तोलकापियम है, उसके जो संगम लिटरेचर है हमारे सामने आज भी ठीक तरीके से, तमिल संगम लिटरेचर का हमारे पास हार्ड बाउंड में आज भी इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। अब उसको अगर हम इंडियन और एक्चुअली में वो इंडियन हिस्टोरिकल वर्क ही है, तो आप ये इस लाख को समझिए कि अगर हमारे सामने इंडियन हिस्टोरिकल या इंडियन लिटरेरी वर्क कोई सामने नहीं आ पा रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि वो क्यों नहीं सामने आ पाए, हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड क्यों रखा, 2000 साल हो गए, 1000 साल हो गए, तो क्यों नहीं आ पाया। तो उस पर कहीं ना कहीं आज भी चर्चा होती है। मेरी उसमें हो सकता है लिमिटेड नॉलेज हो, और है भी, बिकॉज आई हैवंट obviously I'm not an authority on Sanskrit or Greek works, but as far as I know, we were responsible for this lack of this spread of Indian literary traditions, and we still lack on it. अगर हम आज भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें इंडियन लिटरेचर के सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं या एक ही पेपर होता है, उस पर फोकस हम इतना नहीं रखते हैं। ग्रीक लिटरेचर का भी एक पेपर होता है, लेकिन हम पढ़ते क्या है, शेक्सपियर का इतना पढ़ते हैं, हम शेक्सपियर के सारे प्लेस पढ़ते हैं। इंडियन ट्रेडिशन जो है हम अभी भी हिंदी में, भारत की और भाषाओं में या इंग्लिश में ट्रांसलेटेड भी हम इतना फोकस हम नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट आज भी है कि
संस्कृत के वर्क्स हैं या जो देखिए, अब आपने कालिदास और शेक्सपियर की बात की, सबसे पहले एक तो हमें कंपैरिजन बंद करना चाहिए कि ना तो शेक्सपियर कालिदास है, ना कालिदास शेक्सपियर है, और ना भरत मुनि को हम कह सकते हैं कि वो एरिस्टोटल है, एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और इसको अगर हम किसी व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को ही हम एक वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट में देखते हैं, सबसे पहले ये चीज बंद करनी होगी। हम कालिदास को शेक्सपियर नहीं कहेंगे, शेक्सपियर को कालिदास नहीं कहेंगे। So foremost, we have to decolonize our minds. Again, that debate comes. या बट यस, इस पे मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि वो शेक्सपियर है या हमारे कालिदास है, कि अगर हम किताबें बेचने के मामले में आए कि किस राइटर ने ज़्यादा किताबें बेची हैं, तो कालिदास की जो किताबें हैं वो विलियम शेक्सपियर से ज़्यादा बिकी हैं, तो ज़्यादा लोगों ने उनको पढ़ा है। तो दैट हाउ वी लुक एट दिस, क्योंकि अगर हम क्रिटिक की बात करते हैं तो कालिदास पे उतना क्रिटिक नहीं आया है जितना विलियम शेक्सपियर पे आ गया। सो दैट वाज माय पॉइंट। See, Shakespeare is an international writer, playwright. Kalidas is not. But translation is much available on Kalidas. Translation है सर, वो कोई बात नहीं है, ट्रांसलेशन है, लेकिन जितना आई डोंट थिंक सो अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में आप कालिदास, कोई जानता भी होगा कालिदास को, या आप साउथ एशियन नैरेटिव से बाहर कहीं कालिदास, मिडिल ईस्ट में या कहीं पे बात होती है कालिदास पे? आई डोंट थिंक सो. I have not seen. Yeah, this is my question. But if we look at around 1560, then William Shakespeare was in dust. His name was in dust. Then suddenly come Samuel Johnson. And if we look at modern writer, Sons and Lovers writer, then his name was nowhere. Then Sigmund Freud came and make him sensation. What my point is that we need some critics, but we are in lack of that. Until unless we find a critic, Kalidas will remain a Kalidas, but only for Indian, not for the world level. Exactly. Yeah. And if you are talking about the sale of books, वो sale of books भी कहाँ पर limited हुआ है? शेक्सपियर यहाँ पे इतना सेल नहीं होता, वो तो फिर अब वो सब कॉन्टिनेंट की बात आ जाती है. So I think sale of books is not ट्रांसलेशन में या इवन संस्कृत में भी, अगर उसमें कुछ इतना हम डीपली नहीं जा सकते हैं कि कौन सा ऑथर कितना बिक रहा है. उसका हमें मेन चीज ये देखनी चाहिए कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो हम ही लोगों को आगे लेके जाना है, वो अभी तक इंडियंस में ही क्यों नहीं फॉलो अप हो पा रहा, उसका हम क्यों नहीं अभी भी जो है उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं. अब अगर विलियम शेक्सपियर ज्यादा बिक रहा है तो उसकी कमर्शियल वैल्यू इतनी है, एंड एज फार एज आई नो अबाउट द फैक्ट्स एज आई हैव no Kalidas is sold more than I'm giving you an example, Deepak sir. The thing is कि William Shakespeare we all are pretty sure that Shakespeare is known more than Kalidas. Kalidas भी अगर बुक्स की उनकी सेल हुई है, I'm sorry, मुझे नहीं पता इस फैक्ट के बारे में कि उनकी बुक ज्यादा बिकती हैं, और अगर बिकती भी हैं तो वो लिमिट तो है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है होगा, या ज्यादा से ज्यादा वो साउथ एशियन एरियाज, साउथ एशियन कंट्रीज में होगा. बट सेल ऑफ बुक्स, उसमें आई थिंक वो तो एक कमर्शियल फैक्टर है, उसमें हम इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि कालिदास की ज्यादा जो है क्यों किताबें बिक रही हैं या दूसरे ऑथर की ज्यादा कम क्यों बिक रही हैं, जबकि कालिदास का जो है डिस्पाइट ही इज नॉट एज नोन अ फिगर एज कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल फिगर्स. तो इसलिए क्योंकि कालिदास की जो प्लेज हैं, अब वो क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ नाट्यशास्त्र से हटके उन्होंने आम जन की बातों को और कहीं ना कहीं मतलब किंग्स की स्टोरीज पे बात हुई है, और लेकिन जो क्लासिकल कंसेप्ट है उससे हटके कालिदास थोड़ा आते हैं. तो इसलिए वो जो रिलेशन उन्होंने जनमानस से बनाने की कोशिश की थी, वो भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कालिदास क्यों ज्यादा रेलेवेंट माने जाते हैं आज. तो लेकिन हाँ, एज फार एज आई नो, आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट द सेल ऑफ हिज वर्क्स, वो तो फिर एक कमर्शियल चीज है जिसके लिए मैं इतना, मेरी तो नॉलेज थोड़ी सीमित है, उसके बारे में मैं ज्यादा जो है नहीं कह पाऊंगी. बट आई डू अंडरस्टैंड दैट इफ कालिदास इज नॉट एन इंटरनेशनल फिगर, आई थिंक in my perception, I think we as Indians feel related more to him rather than any European or American author such as William Shakespeare or any other. So this is what I think. Thank you from my side. So yes, Sonali, you can conclude.
Yeah, sure. The first. Thank you so much, ma'am, for your teaching and evaluation. While attending this session, it made me nostalgic of my BA first semester class, because at that time only this text went in there, and it was like the Greek and Latin to me.